विजिटर्स। द टेम्परेचर हैड डाउन, टेम्परेचर बहुत नीचे लगातार गिर रहा था, कंसिडरेबली काफ़ी गिर गया था, बहुत ज़्यादा नीचे गिर गया था, मीन्स द इट जस्ट वी wintry time they can feel on such conditions, such environment. The temperature had dropped considerably, and the clouds had come down from their heavenly about to visitors. और जो clouds थे, and the clouds had come down, नीचे आ चुके थे from their heavenly, जहाँ पे वो रहते थे, जहाँ से हम उनको देख सकते थे, about to visitors. I opened wide our main door, and to my great delight, witnessed Lady Cloud floating into the house in her flowing gossamer gown and caressing our face, neck, and hands with her cool moist touch. एंड जब मैंने आई ओपन द वाइड आर मेन डोर, मैंने अपने बड़े दरवाजे को खोला, एंड टू माई ग्रेट डिलाइट, और मैं जिनको बहुत पसंद करती हूँ या मैं जिनको जो बहुत अच्छी लगती हैं, वो विटनेस लेडी क्लाउड, द नेम ऑफ द लेडी दैट इज द क्लाउड, फ्लोटिंग इन टू द हाउस इन हर फ्लोइंग, वो घर में आती हुई दिखाई दी अपने फ्लोइंग गॉसमस मीन्स ब्यूटिफुल गाउन में, caressing our face, उनका फेस, नेक एंड हैंड्स ठंडे मॉस्ट टच के संग दिखाई दे रहे थे. Gradually the haze started disintegrating. I'm repeating the word. Gradually the haze started disintegrating, and the first glint of the sun's rays simmered over the velvet green mountain side, while the dark clouds survived away. Gradually the haze started disintegrating, means the haze means the fog is just we start to be coming down. Disintegrating means girna, just we fall down. It's just looking like the haze means the fog just start to be going down, and the first glint of the sun's rays simmered over the velvet green mountain. और जो सन की एंड द फर्स्ट ग्लिंट, और जो पहली चमक थी उस सन की रेस की, वो सिमर्ड हो रही थी ओवर द किसके ऊपर, वेलवेट ग्रीन माउंटेन्स के ऊपर साइड, वाइल द डार्क क्लाउड स्क्रॉल्ड अवे, जबकि कभी कभी जब वो डार्क क्लाउड्स थे वो तेज चल रहे थे, हवा में चल रहे थे, तो उस बीच बीच में सन की जो सिमर्ड राइट थी वो ग्रीन माउंटेन्स की साइड पर दिखाई दे रही थी, ये गिरती जा रही थी. व्हाट अ ड्रास्टिक चेंज, क्या ड्रास्टिक चेंज था, कितना ब्यूटीफुल चेंज था ये. नाउ अ ब्रिलियंट ब्लू स्काई इमर्ज्ड विद contrasting startlingly white fluffy clouds. अब जो ब्लू स्काई था वो कंट्रास्ट में आ गया था, कहीं पे व्हाइट कलर के पफी क्लाउड्स दिखाई दे रहे थे और कहीं पे ब्लू कलर का स्काई दे रखा था. समवेयर दे कैन सी द स्काई विच वाज ब्लू इन कलर, और सम प्लेस दे कैन विजिट द क्लाउड्स, puffy clouds, white puffy clouds somewhere. It was an artist light. It just looked like as any artist, just we do the same thing, or just we create a such beautiful look with all those shades of green from the lightest to the darkest, and the flowers of every hues and color. ये सब था ग्रीन के सारे शेड्स के संग, मीन्स लाइट टू द darkest, all the shades they all can seen on such hills, or in near about it, and there was all the hills will covered with flowers of every hue and color, means every रंग बिरंगे कलर्स के संग फ्लावर्स को वो देख सकते थे. On the hilly slopes between the rocky crevices, and in every garden there were
splashed of red, crimson, yellow, and orange. On the hilly slopes, hills की slopes पर, slopes means ढलानों पर, or in the downfall of the hilly, between the rocky crevices means darar or the place in between the rocky, and in every garden और लगभग हर garden में there was a splash of red, और हर तरफ एक splash हो रहा था red, crimson, yellow and orange color का. The air was cool and crisp, and the birds and the butterflies were out again. The air बहुत ठंडी थी and crisp थी, and the birds and the butterflies were out again. फिर से butterflies were out again, लगभग फिर से बाहर आ गई थी. We too went out for our daily work. हम भी अपने daily work के लिए बाहर निकल गए थे. Amazingly, there was to be found neither a puddle nor a muddy path. Amazingly, बहुत सरप्राइज था कि there was to be found, जहाँ मिलने चाहिए थे, there was to be found neither, ना तो एक कोई भी puddle, sorry, I'm just repeating my word. Amazingly, there was to be found neither a puddle nor a muddy path, और हमें रास्ते में कोई भी किसी भी तरह का मडी और nor a muddy, ना ही किसी तरह के भरे हुए कीचड़ से भरे हुए या कीचड़ से ढके हुए पाथ्स नहीं मिले. ये किसी भी तरह का, इस तरह का कोई भी पाथ उन्हें नहीं मिला when they all was moving from their daily work. The soil being rocky and sandy, जो सॉल थी, जो मिट्टी थी वो रॉकी हो गई थी और सैंडी सी हो गई थी. द ड्राइड इजीली, और जो बहुत जल्दी से ड्राई हो जाती है ऐसी थी. और द वाटर मेड इट्स वे डाउन हिल, या फिर जो वाटर थी या तो वो ऐसी थी जो बहुत जल्दी ड्राई हो जाए, या फिर जो वाटर था वो पूरा डाउन हिल में चला गया था. मेड इट वे, अपना रास्ता उसने डाउन हिल की तरफ बना लिया था. नाउ दैट द स्काई हैड क्लियर, अब जो स्काई थी जो पूरी तरह से क्लियर थी, हो चुकी थी. द होल माउंटेन रेंज was in view. A full 180-degree stretch of snow-clad mountains gleamed and glistened in the last rays of the sun. Now the sky had cleaned, जो स्काई था पूरी तरह से क्लीन हो चुका था. द होल माउंटेन रेंज वॉज इन व्यू, और अब हम पूरे माउंटेन रेंज को एक साथ एक 180 डिग्री स्केच में देख सकते थे. स्केच जिसमें स्नो क्लेड माउंटेन्स ग्लीम्ड एंड ग्लीज्ड इन द लास्ट रेज ऑफ द सन, जो ऐसा जो सन की रेज की वजह से बहुत ही उसके स्नो से भरे हुए माउंटेन्स को एक शाइनिंग के संग देखा जा सकता था. वी स्टूड mesmerized as the reflection of the setting sun on the snow seemed to set the whole range ablaze. We stood mesmerized, हम खड़े ही होकर mesmerized हो गए थे, just we happy हो गए थे, feel happy कर रहे थे, या just we amazing feel was on that time as the reflection of the setting sun. जब हमने देखा reflection of the setting sun on the snow के ऊपर, snow seemed to set the whole range ablaze. means माउंटेन्स पे बैठे हुए सन का रिफ्लेक्शंस की वजह से जो पूरा एनवायरनमेंट अब्लेज लग रहा था, सुंदर दिख रहा था, ब्यूटीफुल दिख रहा था, उससे हम बहुत ही ग्लेड हो गए थे, बहुत ही खुश हो गए थे. वॉट एवर द एनवायरनमेंट दैट्स वी कैन सी ऑन सच अ कंडीशन, लाइक सन वॉज सिटिंग ओवर द हिल्स, एंड this just we gave a whole rain ablaze to them. The orange glow began to spread and smeared itself on the surrounding clouds, slowly yet steadily mingling with the darkness as night gradually let down her curtain. Slowly, the orange glow began to spread and spreaded itself on the surrounding clouds.
जो ऑरेंज क्लाउड कलर था वो सब में स्प्रेड हो रहा था एंड स्मेयर्ड, और जब स्प्रेड हो चुका था उस पूरे सरफेस पर जो उस क्लाउड सराउंडिंग जितने भी क्लाउड्स थे उन सब पे ऑरेंज कलर, सन का जो कलर था, सन की जो शाइन थी स्प्रेड हो चुकी थी, फैल चुकी थी, स्लोली येट स्टेडली mingling with the darkness as night gradually let down her curtain। और धीरे धीरे स्ट्रेटली जो बढ़ती हुई मिगलिंग मीन्स मिक्सअप होती हुई डार्कनेस के साथ नाइट आ गई, जैसे कि उस पर कोई, जैसे उस एनवायरमेंट में किसी ने कोई कर्टेन डाल दिया हो। मीन्स द नाइट स्लोली स्लोली जस्ट वी टाइम गोइंग टू बी ओवर द midnight mingling means mix up of the environment we can see on that dark, as the darkness just we come, as it just look like as the curtain be down of the environment. Here the her is indicate to the nature, okay। हर कर्टेन मीन्स उसने अपना कोई कर्टेन डाल दिया हो, मीन्स उसने अपना ब्यूटीफुल कर्टेन, नाइट का कर्टेन उसमें डाल दिया हो। ही हरिड, वी हरिड होम टू फाइंड देयर वॉज अ पावर कट। हम जल्दी से अपने घर की तरफ गए जैसे कि देयर वॉज अ पावर कट, क्योंकि वहाँ पावर कट था, बिजली चली गई थी। आफ्टर अ कप ऑफ स्टीमिंग कॉफ़ी इन कैंडल नाइट, और एक स्टीमिंग कॉफ़ी कैंडल नाइट में लेने के बाद वी स्टेप्ड आउट ऑफ द बंगलो टू चेक द पावर सिचुएशन। हमने स्टेप्ड आउट किया, बंगलो की तरफ देखने चले गए कि पावर कट की सिचुएशन को देखने चले गए। एंड व्हाट अ मैग्निफिसेंट साइट अवेटेड अस, और क्या ब्यूटीफुल मैग्निफिसेंट sight which is really amazing in nature, such kinds of beautiful sight was awaiting to us। it was the darkest of dark night, वो darkest से भी dark night थी। rise with black, पूरी तरह से डरावनी, rise means dark, डरावनी, some horrible pitch black color was there। क्वेक और अ क्रैकल मेड अप जम्प, लगभग वहाँ पे क्वेक एक चरमराहट या फिर अ क्रैकल या बहुत सारी चरमराहट मीन्स द साउंड ऑफ द क्रैकिंग मेड वन जम्प एक संग वहाँ पे आ रही थी। बट वैन वी लुकड अप, और जैसे ही हमने ऊपर देखा वी स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन, और जब हम लगभग सरप्राइज के संग खड़े ही रह गए। Looking at the star spangled dark down above, looking at the star spangled dark down above means dome above, ऊपर के डोम पर जो डार्क स्टार्स का स्प्रेंगल था उसको देखकर हम वहाँ पे ट्रांसफिक्स्ड हो गए, लगभग वहाँ पे खड़े ही रह गए, सरप्राइज्ड हो गए और वहाँ पे खड़े ही रह गए। नेवर एवर हैड वी सीन अ मिलियन brightly lit stars and at such close quarters। हमने कभी भी नेवर एवर, कभी भी नेवर एवर हैड सीन, हमने इससे पहले कभी भी इतने सारे मिलियंस ब्राइटिंगली चमकते हुए जलते हुए स्टार्स को नहीं देखा था। एंड एट सच क्लोज क्वार्टर, और इतने पास से तो कभी नहीं देखा था। वी जस्ट हैड टू स्टैंड on our toes to touch them, just हम अपने टो पे खड़े हो गए उनको टच करने के लिए। it had pleasantal aura and the ethereal beauty of the surroundings। ये it was credible, ये पूरी तरह से heavily aura, a feeling which we never saw before of the time, हमने इससे पहले इस तरह की ब्यूटी जो कभी नहीं देखी थी। and a ethereal beauty, beauty which was unworld, which have a unworld, जिसका कोई भी ऐसे वर्ल्ड में हम जिसको नहीं बोल सकते, हमने अपने आसपास कभी ऐसी ब्यूटी नहीं देखी थी। द ब्यूटी ऑफ द सराउंडिंग्स, उस तरह की ऐसी ब्यूटी थी हमारे सराउंडिंग की। द ट्यूमल्ट ऑफ इमोशंस विद इन वॉज हार्ड टू एक्सप्रेस, ओनली अ सॉफ्ट थैंक्स escaped my lips। द tumult मीन्स कंफ्यूजन, इमोशंस थे उस समय, जिस समय मैं उस
इमोशंस को एक्सप्रेस कैसे करूँ, इसके लिए मेरे बहुत कन्फ्यूज़न इमोशंस है कि क्या एक्सप्रेस करना चाहिए मुझे उस मोमेंट्स के लिए। ओनली अ सॉफ्ट, केवल एक सॉफ्ट थैंक यू ही मेरे मुंह से निकला। थैंक यू स्टूडेंट्स।